Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. सिर्फ कभी कभी एक आध बात मुझे सुनने को मिलती है, नजरअंदाज कर देता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं यार टीवी में ऐसा ही होता है। जब मैं कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ तो मैं ऐसे प्रिटेंड करता हूँ कि मैंने वो बात सुनी है और फिर भी मैं वही करता हूँ जो मुझे करना है। हमने रोमांस ही नहीं किया था, लेकिन पीपल वर लाइक कि यार यू टू गाइस शुड गेट मैरिड, you two guys are made for each other, we've never seen chemistry like। अब केमिस्ट्री कहाँ से आई भाई? हमने कोई एक रोमांटिक डायलॉग, एक रोमांटिक नजर से देखा भी नहीं एक दूसरे को, सिर्फ एक दूसरे का हाथ पकड़ के भाग रहे थे। और सुम्बुल की मैं ऑफिशियल नैनी हूँ सेट पे। मैं उसकी आया हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं सुम्बुल की आया। तो सुम्बुल छोटा सा बच्चा है और उसका सब ख्याल मुझे रखना पड़ता है, उसका खाना मेरे साथ होता है, फिर उसको मुझे सब हर चीज में वो मेरा ऐसा शर्ट पकड़ के घूमती रहती है बाजू पे ऐसे। तो प्रैक्टिकली बच्चा है और मैं उसकी आया हूँ, मैं उसका ख्याल रखता हूँ। Welcome to E-Times TV. How are you? I'm doing great. How are you doing? I'm good too. And how was the shooting experience in Hyderabad away from home? Was it difficult? I feel it was lovely because I think we were at one of the best places that you can be in. मुझे I visited Ranji for the first time because of this, and I feel it's one of the most phenomenal places that you can shoot in. Secondly, we felt safer shooting there because any which way we used to shoot like what we're doing right now as well. We're shooting outside and then we're coming back to our family at home who are staying at home, not getting out that much. So over there in Hyderabad, we were in a bio bubble. We were inside the studio. Even the hotel was inside the studio. It was only us that was shooting there. So we felt safe also because the family is safe in their houses, in their respective cities and states. And we are shooting, we're working, but we're coming back to a hotel room and we are all in a bio bubble. We are not mingling or, spending time with any outsiders or coming in touch with any outsiders. So I think that was the safest environment that you could work in. And I feel Ramoji is one of the most professional places to work at. After being there for 2 months, we went there prepared for 15 days. And then it got extended and ended up staying there for 2 months. The staff out there, the crew that we hired from Ramoji, the discipline, the professionalism, the hygiene levels were tremendous. I mean, it's something that you can learn from. So I think all in all, it was a fantastic experience. The only thing is last 10 days or 12 days, we started getting homesick. At least I started getting homesick, and then you start missing your family also. Because there was no clear picture of when we are coming back. Very uncertain. If you know that you're going to stay for 2 months or 4, you're mentally prepared for it. Exactly. But here it was getting indefinitely extended. 10 days, again 12 days, again 10 days. So that starts playing on your mind. So that was the only hindrance. Otherwise, it was fantastic. In fact, my next question was how difficult was to stay away from family, especially you have a kid. 2.5 years old. Yeah. And he dotes on me. So yeah. So I feel in the last 10 days, it was really tough. I think till then we were just pulling it. Nowadays, because of technology, you can FaceTime your family. So I used to FaceTime them, say around 2 or 3 times a day. So you feel that, physically you can see each other. Yeah. It's not all that bad. But in the last 10 days, I started getting homesick. So my birthday was on the 8th of June. So I called over these guys. Like they did an RT-PCR test in Pune. And they just flew out to Hyderabad. And the last entire week for 7 days, they were with me. Wow. So that was like a blessing. Yeah. So, yeah. Kashmir, we know that you have been, working in this industry, for a long time now, and you have tasted success. ऐसा नहीं है कि success आपने पहले नहीं देखा है, but वो कहीं ना कहीं थोड़े, एक region तक सीमित थी. You started working in Hindi films also. वहाँ पर भी आपको popularity मिली, web shows. But with Imli, can we say there is a new beginning? Because now you are a household name. हिंदी बेल्ट में भी आप इतने पॉपुलर हो गए हैं, लोग आपको इतना जानने लगे हैं. We know that you have done OTT also, but with Imli, things have changed for you. So can we say this is a new beginning for you? I feel Imli, yes, a new beginning in a new medium, I would say. Like I hadn't done television an extensive level earlier. I'd done some episodics, like limited episodes का एक series मैंने किया था Discovery के लिए. But उसके अलावा मैंने कभी TV नहीं किया था इस तरीके से. So I would say it's new universe for me entirely. कि जहाँ पे आप 30 दिन
एक साल हो गए, अभी 8 महीने हो गए, एक साल के लिए आप 30 दिन रोज 12 घंटे एक ही किरदार निभाते हो, और उसका अंत आपको पता कहाँ जा रहा है, क्योंकि फिल्मों में और वेब शोज में आपको पहले स्क्रिप्ट आपके हाथ में होती है, तो आपको पता है कि वो कहाँ पे एंड होने वाले है, तो आपको पता है कि आपको कैरेक्टर यहाँ से शुरू करके यहाँ तक पहुंचाना है और वहां पे वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मुझे पता ही नहीं, ये लॉकडाउन जैसे इनडेफिनेटली एक्सटेंड हो रहा है, वैसे ये शोज इनडेफिनेटली चलते रहते हैं सालों साल। सो आपको पता ही नहीं होता ये खत्म होने वाला है, ये कैरेक्टर कहाँ से कहाँ जाने वाला है। सो मेरे लिए एक नई यूनिवर्स है। आई वुड से इट्स अ न्यू बिगिनिंग इन अ न्यू यूनिवर्स। पॉपुलैरिटी वाइज I'm coping up pretty well with it. I'm getting used to it now, and I'm trying to reinvent myself every day. In between, there are some frustrating moments, obviously, for every actor or performer. But the skill or the job is the name of jobs that you get to that, and you start a new day again fresh and try to do something new and reinvent yourself. On the popularity basis, are you saying that I've become a household all over the country, across the country, which is a fact. But I feel Aditya Kumar Tripathi has become a household name. Now let's understand the difference between this. I will tell you, I'll speak about my mission today. My mission is to make Kashmir Mahajani a household. Not Aditya Kumar Tripathi. Aditya Kumar Tripathi तो बन गया already household name. So that is good. पर क्या होता है कि ये popularity से ना किसी एक्टर को इसे बहुत ज्यादा सीरियसली या इसको अपने सिर पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कैरेक्टर अभी हाउसहोल्ड नेम बन गया है। अभी बहुत कम ये फॉर कश्मीर महाजनी एज अ पर्सन, एज एन एक्टर टू बिकम अ हाउसहोल्ड नेम। उसके लिए मुझे अगले 10 करना पड़ेगा, मुझे ऐसे 4 शोज करने पड़ेंगे, मुझे 10 वेब सीरीज करनी पड़ेगी, मुझे 5 सुपरहिट फिल्में देनी पड़ेंगी, जिसके बाद कश्मीर महाजनी को देखने के लिए एक आध शो देखने बैठेंगे लोग, कश्मीर महाजनी को देखने के लिए एक आध फिल्म देखने जाएंगे लोग, कश्मीर महाजनी को देखने के लिए सीरीज देखेंगे लोग। तो वो जब होगा तब आई वुड से दैट आई हैव बिकम अ हाउसहोल्ड नेम। टिल देन आई एम नॉट द हाउस। आदित्य त्रिपाठी जो मैं वो हाउसहोल्ड नेम बन गया है। जिस दिन आदित्य कुमार त्रिपाठी दिखना बंद हो जाएगा, उस दिन ये जो पूरी संख्या है उसमें से शायद 40% संख्या किसी और को फॉलो करना शुरू कर देगी, जो 8:30 बजे शाम को दिखेगा मेरी जगह पे। तो द मिशन इज टू मेक कश्मीर महाजनी a household name, and for that the journey has just begun. The next 7, 8 or 10 years, I will complete the mission. I will achieve the mission, which is going to happen. That Kashmir will become a household name. But that is going to take a long time. It's going to take a lot of efforts, a huge body of work, and after that, that's going to happen. Yeah. So that's the difference, I feel. But are you loving this, the fame, the adulation, the appreciation for character that is coming your way? Are you loving it? Who doesn't love it? If anybody says that no, it's okay, I on my work and all, they're lying. You obviously, if anybody praises your work and anybody says that we love you and anybody adores you for what kind of work you're doing, you're always going to love it, and you're going to be happy about it, and you're going to get a good night's sleep after reading all the fan mail that you get. So I think you feel great about it. There's no doubt about it. And as you said कि you know आपका ये पहला टेलीविजन शो है, एक ऐसा जिसको आप इस किरदार को 30 दिन निभा रहे हैं. Does it sometimes get चैलेंजिंग एंड एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है? बिकॉज यू नो मैंने काफी बार एक्टर्स से बात की और ये हमें पता चलता है कि डेली सोप्स का प्रॉब्लम ही होता है, देयर इज नो बिगिनिंग एंड देयर इज नो एंड, इट यू नो गोज ऑन. एज एन एक्टर डज इट बॉदर यू समटाइम्स? Occasionally it does. Every I would say once every week it bothers me. Once every week I get scared that am I repeating myself? I'm doing something that is very monotonous and that is very predictable. So the idea is to break the discipline. I think a TV show is something that tests your tenacity as an actor. You can take it in a negative way, कि यार देखने वाले मोनोटोनस हो जाते हैं, वो क्या फिर जाते हैं खड़े होते लाइन बोल के निकल आते हैं, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं. मैं उनमें से हूँ जो सोचता है कि अगर टीवी करना ही है लेकिन मैं कर रहा हूँ तो मैं हूँ, मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा, मैं जैसा काम करता हूँ वैसे ही काम करूंगा. तो मैं इसे एक चैलेंज की तरह स्वीकारता हूँ कि यार ये मेरी टेनेसिटी चेक कर रहा है कि कितने लंबे अरसे तक मैं अपने आप को रीइन्वेंट कर सकता हूँ रोज की मतलब ऑन अ डेली बेसिस. नॉट कि बाबा एक फिल्म के लिए अपने आप को रीइन्वेंट, एक महीने का ब्रेक ले लिया फिर दूसरी फिल्म पे चला गया, ऐसे नहीं. ऑन अ डेली बेसिस में अपने आप को कितना रीइन्वेंट करता हूँ, कितना नयापन अपने परफॉर्मेंस में अपने किरदार में. वो आपकी टेनेसिटी चेक करता है, आप कहाँ तक अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हो एज एन एक्टर. So I take it like that, and every once in a week I get scared.
every once in a week. But it's good to get scared, because if you're scared, that means you're taking your work seriously, and that means that you're going to work towards a positive, towards a positive direction. That's good. It does scare you sometimes. Yeah. And how different this medium you find, especially TV, for you? आपने वेब कर लिया, आपने फिल्म्स किए हैं, तो आपने कहीं ना कहीं थिएटर आपने इतने सालों तक किया, you have battled all the mediums, कहीं ना कहीं हर जगह काम किया आपने. What difference do you find in television, and do you find it hectic? I don't find it hectic, because I was used to working 24 hours. In fact, I'm working less right now. I'm just working 12 hours. I will start working 24 hours again once the lockdown gets up and I start shooting for my film. So I'll be shooting for my film at night and shooting for the show during the day. And I'll be sleeping in my van and taking a shower in my makeup room. So yeah. So that is how I'm used to working for the last 2 years. So I don't find it hectic. What is the difference? I would say, as I said, the only difference is that on a daily basis you have to reinvent as an actor. Apart from that, no difference at all. मैं जैसे मैंने आपसे कहा, मैं हूँ, मैं तो वैसे ही काम करूंगा. आप मेरे काम को आप टीवी पे बेचो, आप वेब पे बेचो, या आप थिएटर्स में बेचो, काम तो मैं एक्शन और कट के बीच में जो होता है वो तो मैं ही अपना काम करूँ. सिर्फ कभी-कभी एक आध बात मुझे सुनने को मिलती है, नजरअंदाज कर देता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं यार टीवी में ऐसा ही होता है. जब मैं कुछ अलग करने की कोशिश करता होता, तो मैं ऐसे प्रिटेंड करता हूँ कि मैंने वो बात सुनी है और फिर भी मैं वही करता हूँ जो मुझे करना है. तो वो बस ये बात कभी मुझे वेब या फिल्म को नहीं मिलती कि टीवी में ऐसा ही होता है. तो वो पहली बात है जो मैंने यहाँ पे टीवी में आने के बाद डायरेक्शन टीम के कुछ लोगों से सुनी, लेकिन उसे मैंने नजरअंदाज कर दिया. उससे मैं ये चीजें, इन चीजों को मैं अपने आप को हैम्पर करने नहीं. अपार्ट फ्रॉम दैट कोई फर्क नहीं भाई, मैं वैसे ही काम करता हूँ. पर आपकी इस बात से मुझे एक बात जरूर याद आई. व्हेन आई हैव रिसेंटली स्पोकन विद लॉट ऑफ टेलीविजन एक्टर्स हु हैव स्टार्टेड डूइंग फिल्म्स, वेब शोज. जैसे अभी लॉकडाउन में स्पेशली काफी सारे टीवी एक्टर्स दे वेंट अहेड एंड डिड वेब शोज. उन्हें एक चीज का हमेशा सामना करना पड़ता आया है कि जब वो किसी भी फिल्म के लिए ऑडिशन देते हैं या वेब शो के लिए, दे आर ऑलवेज टैग्ड एज अरे ये तो टीवी एक्टर है, ये तो हैम करता है. हैव यू एवर कम अक्रॉस सच नेगेटिव कमेंट्स? नहीं, I don't, because मैं तो ऑलरेडी कर रहा हूँ वेब शोज और फिल्में, तो टीवी मेरे लिए, जैसे मैंने बोला कि मुझे उल्टा सुनना पड़ता है. मुझे ये हैमिंग में नहीं सुनना पड़ता. मुझे टीवी के लोग मुझे बोलते हैं कि जब मैं कुछ अलग करता हूँ तो बोलते हैं अरे नहीं, तो कह रही है ऐसे नहीं करते, हम लोग ऐसे करके देखते हैं, ये गलत, ये बहुत लोग करते हैं, ऐसे नहीं करते. तो वो पहला रिस्पॉन्स ये आता है कि अरे आप फिल्मों के हो, ये टीवी में ऐसा ही होता है. तो फिर मैं उनको बोलता हूँ भाई मैं कैसा भी होता हूँ, अभी मैं फिल्मों से आया हूँ, मुझे ले लिया ना आपने, तो मैं ऐसे ही करूंगा. तो क्या ऐसे ही करूँ. तो मुझे उल्टा सुनना पड़ता है एक्चुअली. मुझे टीवी के लोग बोलते हैं कि ऐसे ही होता है, आप ऐसे मत करो, आप फिल्मों के हो. तो मुझे बोलना पड़ता है मैं फिल्मों में कहीं का नहीं हूँ, मैं बस मैं हूँ. मैं ऐसे ही करता हूँ, आपको लेना है तो लो बस. Exactly. And how is the bonding on the sets? We see a lot of good chemistry on screen, but अगर off screen की बात करें, हम आपके इंस्टा स्टोरीज भी देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी देखते रहते हैं. वी सी अ लॉट ऑफ गुड बॉन्डिंग वाइब ऑन द शो. ऑफ स्क्रीन हमें आप बताइए कितनी मस्ती होती है, क्या सेट्स पे माहौल क्या होता है? सो आई वुड से सी बहुत मजा आता है, बहुत धमाल आती है. एक तो ये मेरी दोनों जो बीवियां हैं उनके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. सो जो मेरी वर्क वाइफ्स है, एक मयूरी है और एक तो उनके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत कमाल. ये मयूरी के साथ मेरी बहुत गहरी और अच्छी दोस्ती है. जो मां किरदार निभाती है. और सुम्बुल की मैं ऑफिशियल नैनी हूँ सेट पे. मैं उसकी आया हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं सुम्बुल की आया. तो सुम्बुल छोटा सा बच्चा है और उसका सब ख्याल मुझे रखना पड़ता है. उसका खाना मेरे साथ होता है, फिर उसको मुझे सब हर चीज में, वो मेरा ऐसा शर्ट पकड़ के घूमती रहती है बाजू पे ऐसे. तो प्रैक्टिकल बच्चा है और मैं उसकी आया हूँ, मैं उसका ख्याल रखता हूँ. सो वी शेयर. और एक अच्छी बात ये होती है कि वो मुझसे उम्र में थोड़ी छोटी है. तो मैं डोमिनेट कर सकता हूँ. मेरे ज्यादा से ज्यादा सीन सुम्बुल के साथ होते हैं तो मैं अपनी चलाता हूँ, उसकी बिल्कुल चलने नहीं देता. तो ये सारी चीजें मेरे लिए ईगो सेटिस्फाइंग भी है और मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है कि मैं, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाती. अगर बोलती है तो मैं डांट देता हूँ उसको और वो सुन लेती है मेरी डांट, जो मयूरी नहीं सुनेगी कभी. तो ये तो बड़ा ही बेनिफिशियल पोजीशन में काम कर रहा हूँ एकदम.
तो बड़ा मजा आता है मुझे। हाँ. और मैं लोगों को बोलता रहता हूँ कि कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, आप भी पूछोगी शायद ये सवाल, कि सुम्बुल के साथ आप काम करते हो, आपको एज डिफरेंस का कोई फर्क नहीं महसूस होता? तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार एक साल या 8 महीने सुम्बुल के साथ काम करने के बाद ना मेरी मेंटल एज ऑलरेडी 21 इयर्स बन चुकी है। और अभी अगले अगर ये शो चला तो बाय द टाइम एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर मैं 12 या 11 साल का बन चुका हूँ सुम्बुल के साथ रह रह के। तो वैसे एज डिफरेंस बिल्कुल नहीं, उसने मुझे वो लेवल पे लेके आई है, वो मुझे ऑलरेडी मेंटली शी गॉट मी डाउन टू 21 and 20, so there's no age difference between us anymore. But does it get awkward sometimes, you know, romancing her, especially जब romantic scenes आते हैं? No, not at all. Yeah, as an actor I'll tell you, you manage it. No, as an actor, I feel, I'll tell you one thing, very frank. Even before we started doing romantic, like Sumbul and I, we didn't do a single romantic scene. हमने सिर्फ एक शॉट दिया था जिसमें हम धुएं के बीच में से भाग रहे। एक शॉट था जिसमें वो बॉम्ब्स वगैरह फूट रहे हैं और मैं उसको लेके धुएं के बीच में से भाग रहा हूँ। Yes, yes. बाल उड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और सॉलिड सब कुछ था, तो वो एक शॉट था। उसके बाद से आप अगर इंटरनेट पे देखोगे, हमने रोमांस ही नहीं किया था, लेकिन पीपल वर लाइक कि यार you two guys should get married, you two guys are made for each other, we've never seen chemistry like। अब केमिस्ट्री कहाँ से आई भाई? हमने कोई एक रोमांटिक डायलॉग, एक रोमांटिक नजर से देखा भी नहीं एक दूसरे को, सिर्फ एक दूसरे का हाथ पकड़ के भाग रहे थे। लेकिन लोगों की तरफ से ये आने लगा कि नहीं 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 नहीं, आपकी क्या केमिस्ट्री है, आग लगा देती है स्क्रीन पे, आप दोनों शादी कर लो, आप दोनों ये कर लो, वो कर लो। तो get this kind of a response even when you not romance the heroine, उसके बाद romancing doesn't become awkward because it's like you get so much of confidence that people love to see the two of us so much in front of the camera, and they are like dying to see us romance each other. So then awkwardness तो वहीं पे चली गई यार। वो तो जो लाखों लोग हैं अपनी awkwardness पूरी गायब कर दी, पूरी की पूरी। So it's impossible. I think मयूरी के साथ रोमांस करते समय थोड़ा सा awkward हो जाऊंगा मैं शायद। लेकिन सुम्बुल के साथ वो ऐसा है कि हमने रोमांस करने से पहले ही लोगों ने उसको इतना ऊपर चढ़ा के बढ़ा के ये कर दिया ना कि नहीं नहीं कश्मीर सुम्बुल, नहीं नहीं आदित्य इमली आदिली, कि वो ऐसा हो गया कि इनफैक्ट हमारा ऐसा हुआ कि अरे यार अभी कोई रोमांटिक सीन डाल दो क्योंकि ये लोग परेशान कर रहे हैं कि कब रोमांटिक सीन आएगा। ऐसा हो गया वो। तो it's very comfortable. Secondly, we have a very good camaraderie. We are very comfortable together. Generally, we spend a lot of time on the set together. We have lunch together. We have breakfast together. Whenever we are not shooting, we are chatting. We are listening to music together. So it's like an extended family for me. Being with Sumbul, or with Mayuri, or being with Ritu, it's an extended family. So no scenes become uncomfortable then. In fact, you know, I remember कि जब बीच में वो ट्रैक आया था जहाँ पे मालिनी घर छोड़कर चली जाती है, and you know, she realizes that you know दोनों के बीच में वो अब बॉन्ड नहीं रहा, and you started realizing your love for वहां पर काफी mixed reaction थे फैंस की तरफ से, because lot of people felt कि मालिनी के साथ बहुत गलत हो रहा था because you guys were in a relationship for 7 years और तब आपको रियलाइज नहीं हुआ कि आपने कभी प्यार नहीं किया। जब ऐसे सीन्स या ऐसे जब दिख कर आते हैं कश्मीर, एज एन एक्टर आप कितने कन्विंस्ड होते हो टू परफॉर्म दिस? आई एम टोटली कन्विंस्ड एज एन एक्टर. I believe the flaw is in our system of Indian television, which needs to be removed from, उसको जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहिए. एक चीज तो लोगों को समझ में आनी चाहिए कि यार ये एक फिक्टिशियस शो है, ये लोग असली नहीं है. आदित्य कोई एग्जिस्ट नहीं करता, मालिनी कोई एग्जिस्ट नहीं करती, ये लिखी हुई कहानी है और सोसाइटी का रिफ्लेक्शन ये चलता है. दिस इज व्हाट हैपेंस, सोसाइटी उसी का एक रिफ्लेक्शन है. थर्डली ऐसा होता है ना, क्या है कि इंडियन टेलीविजन की एक जो सोच है ना कि हीरो जो है ना वो भगवान श्री राम है, हीरोइन जो है वो सीतियां हैं और ये कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते. Right. ये मतलब दूध खुले हुए कहाँ से आसमान से टपके हुए कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, दूध से नहाते हैं या क्या करते हैं मुझे पता नहीं. राइटिस्ट, लेकिन ये ऐसे कैरेक्टर होना चाहिए हर स्टेप. देखो राइटिस्ट ये बहुत वर्ड है, राइटिस्ट मिथ है, मतलब डिमांड है. या the idea is कि देखो भगवान आपको आप इंसान नहीं चाहते हीरो में, आप हीरो भगवान होना चाहिए. अब मालिनी कैसे, मालिनी का कैरेक्टर भगवान है शो में, वो तो मतलब सबसे परफेक्ट एकदम. ये ऐसा कोई होता है क्या भाई? मुझे एक इंसान आप दिखा दो
जो एक परफेक्ट फादर, परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट फ्रेंड, परफेक्ट ब्रदर, परफेक्ट बॉयफ्रेंड, परफेक्ट सन, सब परफेक्ट ही हो, ऐसा कोई तो वो इंसान नहीं है, फिर वो भगवान बन जाता है। तो आपको क्या हुआ है, आपको सदियों से इंडियन टेलीविजन पे भगवान देखने की आदत पड़ गई है कि हीरो है तो भगवान है, हीरोइन भगवान है। ऐसे नहीं होता भाई। और ऐसे किरदार करने में मुझे लगता है बहुत बोरिंग होते हैं किरदार करने में, क्योंकि उनको कोई शेड ही नहीं होता। देयर इज नो ग्राफ टू द कैरेक्टर, देन दे आर जस्ट गुड। देयर इज नो ग्रे, देयर इज नो ग्राफ। देखो इंसान है, इंसान से गलती होगी, इंसान से। तो आदित्य कुमार त्रिपाठी, व्हाट आई एंजॉय प्लेइंग, जो क्रिटिसाइज करते करे, क्योंकि उनकी वो इम्यूनिटी अभी बन चुकी है सालों से उस तरीके का टेलीविजन देख के। बिल्कुल। जो लोग बाकी के चीजों से भी एक्सपोज है, जिन्होंने वेब शोज भी काफी सारे देखे हैं, फिल्में काफी सारी देखी है, जो फिल्मों से एक्सपोज, जिन्होंने काफी पढ़ा है अपनी जिंदगी में और जिंदगी देखी हुई है, वो लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं जी कि ये एक इंसान है, इससे गलती होगी, ये गलत। अभी वो ऐसा हो सकता है ना कि 7 साल आप एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो और 7 साल कैसे नहीं पता, अरे 7 साल तक उसे किसी और से प्यार ही नहीं हुआ, कोई ऐसी लड़की उसकी जिंदगी में नहीं आई जिससे उसको प्यार होगा, तो वो कैसे समझेगा कि वो इससे, तो तब तक वो समझ रहा है यही प्यार है। राइट। 7 साल के बाद एक लड़की उसकी जिंदगी में जिससे उसको प्यार हुआ और तब उसे समझ में आया कि अरे अच्छा ये प्यार है और ये सिर्फ कंपैटिबिलिटी थी, ये सिर्फ दोस्ती थी। और उसने उसके बाद बिल्कुल वक्त जाया ना करते हुए उसने इमीडिएटली कन्फेस कर दिया कि भाई मैं नहीं करता प्यार, मेरे लिए नहीं। जब वो पूरी तरह से कंफर्म हो गया उसके लिए कि नहीं ये प्यार नहीं है, सिर्फ दोस्ती है। ऐसा होता है ना, ये हो सकता है किसी भी इंसान के साथ। हाँ, भगवान के साथ नहीं हो सकता, लेकिन आदित्य कुमार त्रिपाठी भगवान है ही नहीं और हमें भगवान नहीं प्ले करना है। भगवान की पूजा की जाती है, हम भी करते हैं। हमें नहीं भगवान बनना है, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होंगी, लेकिन एक अच्छा इंसान कौन होता है, जो अपनी गलती माने और उसे सुधारने की कोशिश करे। राइट। तो दैट वे आई फील ही इज अ फ्लॉड गाय, बट ही इज अ गुड गाय। He will try to rectify his mistake. He will try to make good out of it. He will accept his mistake. First of all, he'll accept his mistake. He will not say that I'm not wrong. He'll say I'm wrong. I went wrong. I'm sorry. Yeah. He'll cry for that. वो माफी मांगेगा, उसके लिए उसको जो प्रायश्चित करना पड़ेगा वो करेगा, जो कुछ भी उसको उसके लिए पे करना पड़ेगा वो करेगा, और वो उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा है इस शो में। That is the beauty of the character. Right. So just because some 30-40% people who have been exposed to wrong kind of entertainment so far, that they've been put into a world where they believe that such people exist, कि जहाँ पे आदमी भी भगवान है, औरत भी भगवान है और सब भगवान की तरह बर्ताव कर रहे हैं, कोई कुछ गलत कर ही नहीं रहा है। ऐसी दुनिया में रहने की जिनको आदत है उनको नहीं पसंद आएगा, उनको हजम नहीं होगा वो। That is fine. The idea is कि उनको भी आहिस्ता आहिस्ता हमको उनकी टेस्ट बदलनी है कि भैया अभी रियलिस्टिक शोज देखो, आप रियलिस्टिक किरदार जिसमें हीरो एक नॉर्मल इंसान होता है जो आपके बगल के फ्लैट में रह रहा हो या आपके बगल के घर में रह रहा हो, उसी की तरह वो भी एक नॉर्मल इंसान है, उससे भी गलतियां होंगी। तो आप ये अभी ये रियलिज्म टेलीविजन पे एक्सेप्ट करना शुरू कर दो। जो वेब पे या फिल्मों में एक्सेप्टेंस उसको कई सालों से मिल रहा है, लेकिन टीवी में अभी इट्स हाई टाइम कि इंडियन टेलीविजन मैच्योर्स एंड इट शोज रियल पीपल विद रियल प्रॉब्लम्स। और ये किरदार करने में मजा बहुत आता है। नहीं तो यूनिडिमेंशनल कैरेक्टर हो जाता है सब चीज के लिए। अगर मैं ऐसे खड़ा रहूं तथास्तु बेटा, तुम्हारे साथ मैं अच्छा करूंगा, तुम्हारे साथ भी अच्छा करूंगा, ऐसे थोड़ी बोरिंग हो जाएगा कैरेक्टर भाई, बोर हो जाऊंगा मैं। तो आई एंजॉय प्लेइंग आदित्य कुमार त्रिपाठी। इट्स वंडरफुल। ही इज अ फ्लॉड मैन, बट ही इज वन ऑफ द मोस्ट कलरफुल एंड एंजॉयबल पीपल दैट लाइक यू कैन विटनेस ऑन इंडियन टेलीविजन। Thank you so much, Kashmir. It was pleasure talking to you. Thank you, आपने इतना टाइम निकाला और हमसे बात किया. I really had a good time chatting with you. Me too. Thank you so much. Take care. Bye. Take care. Bye-bye. Bye.